First of all, good evening, everybody, and warm welcome to the platform of Kumarji Research. And thank you, all of you, for spending the time for us and for valuable our webinar. And this is especially we kept on a 9 p.m. evening, and that is the reason we many of our NRI clients can definitely join on that, and that is the reason we have kept in the night only. I'll just quickly give you the brief of myself and the Kumarji Group because many of the clients are new on the system. I am Nirali Shah. I am basically taking care of the NRI and the HNI wealth management, the relationship with Kumarji. I'm with Kumarji since last 10 years. Kumarji Group profile, most of the clients are aware, but I'll just quickly give you the brief about the company. See, we are basically a 68 years old company, and we have started our journey. Our promoter is Mr. Nayan Kumarji and Chetan Kumarji. We have different 5 verticals of financial services, agro commodity, real estate services, integrated logistics, and wealth management. In financial services, we do offer all sort of services like equity, commodity, insurance, NRIs, currency, mutual fund, depository services, portfolio management services. Pan India, we have 12 offices across the spread of geography. We have 12 FII clients, more than 75,000 registered clients. We have more than 1,000 plus corporate clients, and we have 200 plus network franchisees. We are into the agro commodities also, where we have a complete solutions like grading, sorting, packaging till the export channel we have. We have presence in many countries like Latin America, East Africa, West Africa, Europe, Gulf countries, and Far East India and China, Far East China. Apart from that, we have been recognized by the many of the government entities like FSI, FIO, EPTA. These are the all government regulatory bodies. We are a RERA registered consultant. In RERA registered consultant, we do offer all kind of real estate services like buy, sale, residential, plotting, all the land services, project marketing, investment and alliances, total property portfolio management. Apart from that, we are also into the integrated logistics, where we have our own company called Calyx Global Logistics. And the 5th vertical, we are into the full-fledged of wealth management, where we do provide all kind of the investment solutions, financial planning, structured products, portfolio management services, mutual fund advisory, global investing, all sort of services we do offer. Along with me, my 2 colleagues is there, Mr. Ravi Diora. Basically, Ravi Diora is the director and head of research of Kumarji Group. He has an experience of 15 years in this industry, and mainly he's a PhD into the research, and he's a post graduation in the stream of management, and he has been awarded by the many of the leading organizations. He has just recently got the Indian Achievers Award of 20 years of excellence. Entire journey, Ravi has an experience of 15 years, more than 15 years in this industry. And along with me, Mr. Ankush Chaudhary is there. Ankush Chaudhary is a director of a group, and he heads the wealth management services with Kumarji. And you've been associated with Kumarji since 2014. I'll just hand over the Ravi because he's a research guy, and today is a very interesting topic on the market, what the valuation of the markets on the research note. So Ravi will give you the more brief after the post-COVID, the behavior of the markets and the current sentiment of the markets. So Ravi, I'll hand over to you, and you can just give you the brief on the market notes, and then the rest part we will be conducting. And end of the session, we will conducting the question answers. We would be happy to assist you, sir. Yeah, Ravi, please, over to you. Thank you, Nirali. And thank you to all attendants for joining the webinar because we have today arranged the webinar for NRI clients especially for NRI clients. So I think the time is odd and it's in 9 p.m. So I think basic purpose of the webinar is the means कि काफी time client का questions and queries आ रहा है कि market is at all time high, means कि if you talk for Indian equities, US equities, Canada, Australia, each and every equity markets and benchmarks are trading at all time high. So every investor, every trader has a question कि ये market कब रुकेगा, means कि what is the overvaluation level, what is the the level where market will
means ki behave like volatile market, like corrective market, but market is continuously taking northward direction, and market is going at all-time high. In this year, S&P has approached new all-time high as well as देखे तो Nasdaq also approached all-time high for 150 times. So basic equities भी इतना चल रहा है. Commodities भी देखे तो all commodities including gold, silver, base metals as well as agri commodities में soya complex, cotton, all international commodities are trading at all-time high as well as देखे तो crude भी it has means के approach new high post 2014. So basic the reason why the market is trading at all-time high, पहले भी हमने काफी वेबिनार्स किए, उसमें मैंने हाईलाइट किया था कि मार्केट में ओवर वैल्यूएशन एंड ओवर रिएक्शन, क्योंकि अभी मार्केट में लोग डर रहे हैं. मार्केट में अभी क्या है कि एक थ्रेट है, एक क्वेश्चन मार्क है कि कभी मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं मेरा अपना इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा अगर मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कितना सेफ है. तो ये क्वेश्चन काफी क्लाइंट्स की ओर से भी आ रहा था, तो हमने एक सीरीज रखी. इंडिया में ऑलरेडी वी हैव डन and 4 means NRI clients we have arranged the same webinar and on same topic, but angle would be some different. and I think कि अभी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में. ये जो टॉपिक है वो ही हम पहले जस्टिफाई करेंगे कि ओवर वैल्यूएशन एंड ओवर प्राइस मींस कि ओवर वैल्यूएशन एंड ओवर रिएक्शन क्या है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है. आपने लेफ्ट साइड जो हम देख रहे हैं वो मारुति की स्विफ्ट है, उसकी वैल्यू 6.5 लाख रुपीस अप्रोक्स. एंड ये राइट साइड देखे तो इट्स अ मर्सिडीज कार एंड उसकी वैल्यू इट्स अ 50 लाख अप्रोक्स. तो बेसिक देखे तो मारुति जो अपनी कार है स्विफ्ट है, उसके जो 6.5 लाख रुपए की वैल्यू है उसके एक इकोनॉमिक वैल्यू है. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि मींस के वर्सेस हम मर्सिडीज कंपेयर करें अगर स्विफ्ट को तो ये पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप स्विफ्ट को स्विफ्ट की तरह कंपेयर करें एंड उसके अगर इकोनॉमिक वैल्यू ले तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ फेयरली वैल्यूड. वो अकॉर्डिंग टू द 6.5 लाख उसके फीचर है, उसके सेफ्टी फीचर्स है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके फैसिलिटीज जो अवेलेबल है. बट मर्सिडीज है वहां पे लग्जरी वैल्यू है, वो 50 लाख की है, जहां स्विफ्ट 6.5 लाख की है. तो हम ऐसा कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते कि स्विफ्ट एंड मर्सिडीज में हम वही कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक का इकोनॉमिक वैल्यू है, सेकंड कंटेन्स द लग्जरी वैल्यू, तो उसको भी फेयरली वैल्यूड बोलते हैं. एंड स्विफ्ट की जो 6.5 लाख की वैल्यू उसको भी फेयरली वैल्यूड बोलते हैं. तो दोनों में का एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक जगह से दूसरी जगह वो हमें पहुंचाए. तो दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है, बट दोनों का जो सफर है वो कुछ अलग है. मींस की जो स्विफ्ट का सफर है उससे कंपेयर में आपको कंफर्ट मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, लग्जरी फील आएगा, वो आएगा आपको मर्सिडीज में, और इसकी ही वैल्यू इस हिसाब से 50 लाख है. तो हमारे यहाँ क्या है कि इन्वेस्टर ऐसा कंपेयर करते हैं कि जो मर्सिडीज की 50 लाख की वैल्यू है इट्स अ ओवर प्राइस. इट्स नॉट ओवर प्राइस, इट्स अ ओवर वैल्यूड. मींस कि इट्स अ वैल्यूड बट इट्स ओवर वैल्यूड. मींस कि अगर कंपेयर करें तो इसको हम ओवर प्राइस की ओवर रिएक्शन ऑफ प्राइस नहीं बोल सकते. तो सिमिलर वे में हम इकोनॉमिक वैल्यू जो स्विफ्ट के है तो उसको भी हम मर्सिडीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो इट्स अ बेसिक डायलेमा इन मार्केट कि ओवर प्राइस क्या है, ओवर वैल्यू क्या है. तो ये क्लियर एग्जांपल है, ये ओवर प्राइस एंड ओवर वैल्यू का, दोनों का अपना अपना वैल्यू है. तो उसको हम ना तो हम मर्सिडीज को ओवर प्राइस बोलेंगे, ना तो हम स्विफ्ट को अंडर प्राइस बोलेंगे. तो इसका डायलेमा कब सोल्व होगा, ये नेक्स्ट है. अभी हम ऐसा सोचे कि एक बड़ा डिस्काउंट आ गया ड्यू टू दिस सर्टेन रीजन, इट्स एग्जांपल, ऐसा कुछ है नहीं, बट यस हम ऐसा समझे कि मर्सिडीज ने अभी 40% डिस्काउंट पे एक ऑफर लेके आए वो. एंड अभी जो 50 लाख का प्राइस है मर्सिडीज का वो भी हो गया 30 लाख रुपीस. तो आप बाय करोगे? हाँ, डेफिनेटली लाइन लग जाएगी. अगर ऐसा कुछ हुआ जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मींस की जिसके अफोर्डेबिलिटी 10-15 लाख के कार के, वो भी लोन लेके एटलीस्ट वो उसका एक मोटिव रहेगा कि वो ये बाय करे, क्योंकि 20 लाख रुपया डिस्काउंट मिल रहा है. तो हर जगह लाइन लग जाएगी, लोग बाय करेंगे एंड मींस की काफी प्री बुकिंग भी हो जाएगी मार्केट में, शायद एक भी कार ना बचे, ऐसा ही सिचुएशन हो जाएगा. तो 40% अगर ये डिस्काउंट आता है तो लोग यहाँ पे मर्सिडीज को लेने के लिए जाएंगे.
ये जो 40% डिस्काउंट पे कुछ मिल रहा है, जिसकी वैल्यू 50 लाख है बट वो मिल रहा है 30 लाख में, इसको हम कहते हैं अंडर प्राइस। इट्स अंडर प्राइस, बट यस स्टॉक मार्केट में बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। वो हम आगे की एक स्लाइड में इसी हिसाब से हम उसको यहाँ से डॉट है वो कनेक्ट करेंगे। अभी ये सेकंड है कि स्विफ्ट में बड़ा प्रीमियम मीन्स कि हम ऐसा समझे कि 75% उसका प्रीमियम है। मीन्स आज अगर मारुति है उसने अपना प्राइस 75% राइज कर दिया। 6.5 लाख की जो स्विफ्ट थी उसका प्राइस है उन्होंने थोड़ा मॉडल में चेंज करके 11.37 लाख कर दिया। तो कोई जाएगा भाई करने? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो वैल्यू आज तक 6.5 लाख रुपए में थी उसका ना तो कोई बड़ा डिफरेंस हुआ है, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू हो गया 11.37 लाख। तो कोई बाय करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इट्स अ टोटली ओवर प्राइस। तो ये दोनों क्लियर एग्जांपल है। इसको बोलते हैं अंडर प्राइस, इसको बोलते हैं ओवर प्राइस। बट इसको हम बोलते हैं ये स्लाइड में जो दोनों वैल्यू है, इट्स नॉट ओवर प्राइस्ड और नॉट अंडर प्राइस्ड, इसका हम बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन। तो मार्केट का सिमिलर वे में है, जब मार्केट और रिएक्ट कर रहा है, जब मार्केट में इतने वैल्यूएशंस हायर है तो लोग को डर लग रहा है, फियर लग रहा है कि ये ओवर प्राइस्ड है। बट ओवर प्राइस क्यों नहीं, वो उसके रेशनल्स है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने चार्ट लिया है जिसमें हमने मार्केट वैल्यूएशन, जो हमने डिस्काउंट प्रीमियम की बात की ना, वो मैंने ये चार्ट से ही लिया था। ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली ली थी। जो कोविड का सिचुएशन इमर्ज हुआ 2020 मार्च में, उसके पहले जब निफ्टी का एवरेज पी 24 था, मीन्स के निफ्टी ऊपर नीचे अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऐसा ऐसा कुछ होता रहता था। बट निफ्टी का ओवर वैल्यूएशन मीन्स निफ्टी का अंडर वैल्यूएशन उसका एक तय करे, उसका एक बेंचमार्क ले, उसका एक एवरेज ले, तो वो था अराउंड 24 के ऊपर जब मार्केट ज्यादा था, थोड़ा कॉशियसनेस आता था। एंड जैसे भी 20 के करीब 18 से 20 की रेंज थी, तब लोग उसको अंडर प्राइस मानते थे, अंडर वैल्यूड मानते थे। तो ये क्लियर सिनारियो था। बट जिस दिन निफ्टी का भी हायर लेवल से नीचे गिर गया, मीन्स कि 40% डिस्काउंट आ गया मार्केट के वैल्यूएशन में, जब मर्सिडीज 50 लाख की 30 लाख हो गई, कोई लेने नहीं गया, वहां पे लोग फियर में थे। जब 17 का निफ्टी का पी था फ्रॉम 30, तब लोग फियर थे, लोग अवॉइड कर रहे थे। बेसिक क्यों था, मीन्स की मार्केट में इट्स अ क्लियर एक वे था, एक फियर था। बट यस मार्केट में क्लियरिटी थी कि ऐसे ही कोविड है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, और कोई भी इवेंट आते उसका ओवर रिएक्शन मार्केट में आता है, क्योंकि वहां पे फियर है। जब भी फियर फैक्टर है वहां पे बाय करना चाहिए। इसका क्लियर एग्जांपल है, इसमें हम उल्टा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मर्सिडीज जब 30 लाख के होते हम नहीं लेते, 50 लाख की हमें मर्सिडीज बाय करनी है, हमें 30 में नहीं लेना है। तो 17 के टाइम पे किसी ने नहीं लिया। वही इन्वेस्टर 42 का पी मीन्स के वहां पे प्राइस जो 17 का पी था उसने अप्रोच किया 42, मीन्स के डाउन लेवल से वैल्यूएशन 75% महंगे हुए। उसके बाद लोग ने इन्वेस्ट करना चालू किया, और उसके बाद वहां पे मार्केट में 20,000 22,000 सेंसेक्स 2 लाख 5 लाख ऐसे मार्केट में रूमर्स फैले, तब लोग ने लेना स्टार्ट किया। अभी भी ऐसा ही सिनारियो है। तो बेसिक क्या है कि जब अंडर वैल्यूड है, जब मर्सिडीज 50 लाख की 30 लाख में मिल रही है, तब बाय करना चाहिए, ना कि जब स्विफ्ट 6 लाख के 12 लाख में मिले। तो ऑलवेज मार्केट में अगर हम रियलिटी के करीब रहे तो मार्केट में ऑलवेज हमें गेन दिया है। मार्केट ने जो निफ्टी का पी है वो नीचे 10 भी जाके आया है, और ऊपर देखे तो 42 भी जाके आया है। तो उसमें ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है, ओवर प्राइस है। सेकंड कि वर्ल्ड में देखे तो अगर आप परसेंटेज सीएजीआर की हम बात करें, तो निफ्टी या सेंसेक्स ने अपने जो शुरुआत हुई उसके बाद 17% सीएजीआर से एवरी ईयर मीन्स के अगर हम कंपेयर करें सिंस इंसेप्शन, तो 17% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। 70% का रिटर्न सीएजीआर रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। तो 17% सीएजीआर में अगर अभी निफ्टी का पी देखे तो इट्स 29, तो 29 का पी देना कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज हमेशा 50 लाख की आती है, स्विफ्ट का ही 6 लाख होता है। मीन्स कि जो इंडेक्स वर्ल्ड में हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है उसका आपको हाई वैल्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी आपको चिप नहीं मिलेगा। आपको कभी भी मर्सिडीज स्विफ्ट या मारुति की कोई कार से प्राइस पे नहीं मिलेगी।
तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि मार्केट में कहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है, कहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है। और अभी ट्रेंड क्या है कि एवरी इन्वेस्टर एंड एवरी ट्रेडर आर बिहेविंग लाइक फंड मैनेजर, क्योंकि जब मार्केट नीचे से 70% बढ़ता है तो सबको ऐसा लग रहा है कि मैं ही फंड मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी बाय करता हूँ वो चलता है। बट ऐसा हर टाइम नहीं होता है। ये 2008-9 के 2007 में हुआ था, उसके बाद आप 8-9 देख लो, यही सिनेरियो होता है जब मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सिमिलर वे में देखना पड़ेगा हमें कि मार्केट में लिक्विडिटी की कंडीशन क्या है। अक्रॉस द ग्लोब देखें तो किसी सेंट्रल बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अलावा अपना जो बड़े पैकेज स्टिमुलस दिए है उसको मींस के उसका रेट कट किया है, या फेडरल ने मींस के क्यूई दिया है, या आप फेडरल गवर्नमेंट्स जो सारे हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूके, इंडिया, यूरोप, जापान, चाइना, किसी ने अपना गवर्नमेंट ने ना तो अपना रोल बैक किया, ना तो सेंट्रल बैंकर ने अपनी पॉलिसी में कुछ स्ट्रिक्ट किया है। हाँ, अभी बोला है कि वो 2022 के एंड से या 2023 से फेडरल रिजर्व विल स्टार्ट टू रेजिंग देयर रेट, या दे विल माइट टेपर देयर बैलेंस शीट। तो आई थिंक ये हो सकता है, बट ये मार्केट में ऑलरेडी काफी डिस्काउंट हो रहा है। बट यस, मार्केट में जब तक ये लिक्विडिटी का कंडीशन रहेगा, कभी भी कोई बड़ा करेक्शन का अगर हम सोच रहे हैं वो नहीं आएगा। लास्ट टाइम जब 42 का पी था, पहले भी मैं काफी वेबिनार में मैंने हाईलाइट किया है कि 42 का पी क्यों है, क्योंकि तब क्या था कि एक कोविड वाले 2 क्वार्टर उसमें थे। तो इस हिसाब से देखे तो 2 क्वार्टर का लॉस लगा, इस हिसाब से निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा हो गया। जैसे ही इकोनॉमी की सिचुएशन एक क्वार्टर में रिकवर हुई, तुरंत ही एक ही क्वार्टर में 12% का इसमें मींस के 2 क्वार्टर लास्ट देखे तो 12% का हमने ईपीएस ग्रोथ देखा। उसके अलावा अभी तक इंडिया में जो पी कैलकुलेट करते थे, जो मींस के निफ्टी का पी है, उसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट थे। अभी ये टाइम से कंसोलिडेटेड, तो थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा फंडामेंटल भी है, बट यस पी नीचे आ गया विदाउट सिंगल पॉइंट करेक्शन। निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, बट पी 42 से 29 आ गया। तो ऐसे ही होना है आगे भी। तो मार्केट में अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक, ये काफी सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिक ये आज का हमारा टॉपिक था, उसका जस्टिफिकेशन था। मार्केट में वैल्यूएशन साथ साथ में देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड, काफी टाइम क्लाइंट क्या गलती करते हैं कि वो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक फाइंड करते हैं और उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। काफी क्लाइंट्स हमें भी कॉल करते हैं, हमें भी बोलते हैं कि सर प्लीज कोई हायर डिविडेंड वाला स्टॉक बताओ। बट ये अगर चार्ट आप देखें तो उसमें कुछ पिक्चर अलग है। मीन्स की जो भी जब निफ्टी ने, ये निफ्टी की 50 का ही वैल्यूएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, जब निफ्टी 50 के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है, उन्होंने जब डिविडेंड हायर दिया है, उस टाइम निफ्टी नीचे रहा है, उस टाइम उसका वैल्यू नहीं बना है। तो ये टोटली इनवर्स कोरिलेशन है। तो अभी जब भी हम बाय करने जाए तो ग्रोथ स्टॉक ढूंढे, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। तो ग्रोथ स्टोरी में ग्रोथ सेक्टर, ग्रोथ स्टॉक्स है, वो आपको रिटर्न ज्यादा देंगे। काफी टाइम लोग हमने गलती देखी इन्वेस्टर की कि 3-4 रुपए के डिविडेंड के लिए 1000 रुपए का प्राइस रिस्क लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। मींस के जो डिविडेंड यील्ड आपकी एडिशनल बेनिफिट है, तो बट डिविडेंड यील्ड कैन नॉट बी अ योर वैल्यू क्रिएशन और कैन नॉट बी अ ग्रोथ क्रिएशन। तो हमारा दोनों पार्ट होना चाहिए, हमारा पार्ट ग्रोथ भी होना चाहिए, हमारा पार्ट इनकम भी होना चाहिए। बट जहां ग्रोथ स्टोरी है, जहां पे अभी कंपेरेटिव ताइवान, अभी कंपेरेटिव साउथ कोरिया, अभी कंपेरेटिव हांगकांग, अभी कंपेरेटिव चाइना, सबसे सिचुएशन अभी इंडिया की टॉप पे है। ताइवान एंड कोरिया वो काफी ओवर वैल्यूएशन है, वो हमारे से अच्छी पॉलिसी वहां पे है, इस हिसाब से काफी एफडीआई वहां पे गया। बट यस, अभी जो फंडामेंटली वैल्यू बन रहे हैं वो इंडिया के ताइवान या चाइना या हांगकांग, वहां पे अपने अपने थोड़ा केओस चल रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सेकंड कि हम एक दूसरा एग्जांपल देखें कि 1979 से जब वहां पे यूएस का इकोनॉमी जब भी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन गया, तब डाउ जोन्स है उसमें 17 गुना रिटर्न दिया। चाइना का जब बेंचमार्क देखे आप, शंघाई इंडेक्स, तो वो जब चाइना 2002 में जब उसका वैल्यूएशन मींस के जब उसका इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हुआ, तो उसका जो बेंचमार्क है उसने भी 6 टाइम रिटर्न दिया। हांगकांग देखे तो हांगकांग में सारे चाइना की कंपनी है, तो वहां भी 17 टाइम रिटर्न दिया। सिमिलर वे में जापान, कोई भी आप बड़ी इकोनॉमी लो,
इक्विटी इंडाइसिस या इक्विटी बेंचमार्क ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है जब वो इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा बुल फेज है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इक्विटीज अभी हम 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच बिटवीन जा रहे हैं। तो यहां से ग्रोथ फेज इंडाइसिस चलेंगे। बट यस, वैल्यूएशन हमें देखना है, कोविड का सिचुएशन देखना है, रियलिटी देखनी है, बट उसके अकॉर्डिंग काफी सेक्टर्स है जिसमें अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल कंज्यूमर है, बट इंडिया के अभी एक भी ब्रांड इंडिया में है नहीं। सेकंड, टेलीविजन, तो इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट यूजर है टेलीविजन में, फिर भी इंडिया की कोई बड़ी ब्रांड या बड़ा कोई मार्केट शेयर कोई टेलीविजन में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ में केमिकल्स है, मेटल्स है, जो चाइना में जहां पे मीन्स रिलेशन की वजह से प्रॉब्लम हुआ, वो भी सेक्टर हमारे पास है। तो सेक्टर स्पेसिफिक इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड करनी है। यह प्राइस टू बुक कोविड के टाइम में 2.17 ये रेशियो गया। ये रेशियो जितना हायर रहता है उतना अच्छा रहता है। मीन्स की प्राइस टू बुक देखे तो उसका एक मेजर 3.47 है। ये रेशियो का भी उल्टा है, मीन्स के रेशियो जब जब एवरेज के ऊपर रहा है तब ये मीन्स के होना चाहिए नीचे, तब पॉजिटिविटी आनी चाहिए। बट ये रेशियो भी जब जब एवरेज के ऊपर रहा है तब इंडेक्स ने एक शार्पली अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसका टोटली ये रेशियो का रिवर्स होना चाहिए, बट ये रेशियो का सीधा कोरिलेशन है। ये रेशियो का सीधा कोरिलेशन मार्केट के साथ है। अगर आप चार्ट देखें तो जब जब ये रेशियो ऊपर गया है प्राइस टू बुक, तब तब मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। हम ये सोचते हैं अगर मैंने अभी इंडिया की स्टोरी की तो उसका बेस क्या है, क्योंकि इंडिया मीन्स के हम इंडियन है तो शायद सबको ऐसा लगता है कि हम इंडिया का प्रेस कर रहे हैं। बट यस, इंडिया है वो ग्रोथ स्टोरी क्यों है, क्योंकि ये हमने अप्रैल 2019 से अभी तक का जून तक का हमने एक डेटा लिया जिसमें एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने लिया। तो बड़े बड़े जो भी सारे हमारे कंपिटिटर है या पियर्स है, उसमें हमने एक चेक किया कि कोविड की सिचुएशन लेते हुए 2019 से लेके 2021 तक कौन सी कंट्री जिसमें हाईएस्ट एफआईएस का फ्लो आया है, तो वो है इंडिया। कंबाइंड फ्लो है इट्स अराउंड 34,321 करोड़। ये सबसे बड़ा फ्लो इंडिया में आया। इतना बड़ा फ्लो कोई भी हमारे पियर्स है उसमें नहीं आया। तो ये क्यों आया है, क्योंकि सारे जान रहे हैं कि हमारा जो भी अभी स्ट्रक्चरल चेंज है उसमें जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बन रही है, वन विंडो क्लियरेंस बन रहा है। तो आई थिंक ये सारे जो स्टेप्स धीरे धीरे इकोनॉमी में लिए जा रहे हैं, तो इससे काफी इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्टिव हम कर पा रहे हैं। बट काफी टाइम क्या होता है कि ड्यू टू दिस एफडीआई कॉम्प्लेक्सिटी एफआई के दौर पे इन्वेस्टमेंट आता है। अभी देखे तो सारे ई कॉमर्स कंपनी में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जोमेटो जो इसका आईपीओ जल्दी लॉन्च होने वाला है, इन्फोएज की सब्सिडरी कंपनी है, उसमें भी डिस्पाइट ऑफ द कंपनीज कंटिन्यूअसली मेकिंग लॉस, वहां भी इतना बड़ा एफडीआई है। तो आई थिंक इंडिया में काफी सेक्टर्स है उसमें ब्राइट स्पॉट है। अभी ये एफआईएस का जो इन्फ्लो आया वो सबसे बड़ा आया है बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी में, वहां पे फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा इन्फ्लो है। वहीं देखे तो एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी इनफ्लो अच्छा रहा है। तो बेसिक ये इनफ्लो जहां पे आया है, तो वैसे देखे तो आउटफ्लो कहाँ पे है, जहां पे कम्युनिकेशन सर्विस, जो हम कोविड के टाइम पे ऐसा मान रहे थे कि टेलीकॉम कंपनी से उसमें सबसे ज्यादा इनफ्लो आना चाहिए, बट इसमें आउटफ्लो रहा। तो बेसिक काफी टाइम एफआईएस का जो बिहेवियर है बैंकिंग एनबीएफसी में, सबसे बड़ा फियर था एनपीए का, बट वहां सबसे ज्यादा इनफ्लो आया है। तो वहां पे देखना है हमें कि वहां पे कहाँ अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बैंकिंग में क्यों आ रहा है, क्योंकि काफी आरआरबी मींस रीजनल रूरल बैंक्स है या एनबीएफसी है जिसकी क्वालिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, उसका सारा मार्केट शेयर है बड़ी बैंकों ने ले लिया। वहीं डिपॉजिट में भी कोविड के टाइम में जब अनसर्टनिटी रही, काफी छोटी बैंकों से इनफ्लो मींस की गया बड़ी बैंकों में। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा है। बैंक्स भी है वो काफी बिजनेस इसमें अपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, उसमें इक्विटीज है, इसमें म्यूचुअल फंड्स है, इसमें इंश्योरेंस है, काफी बिजनेसेस में बैंकों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर की जो स्टोरी है वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब सबको ऐसा लग रहा है कि हम क्या, जैसे
मैं आज कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ तो ऑलवेज क्लाइंट का, ऑलवेज सबका क्वेश्चन रहता है कि आप कौन से पॉइंट से जो चेक करते हैं। हमारे पॉइंट्स है उसमें ज्यादातर फॉरवर्ड लुकिंग होता है, 2 साल के फॉरवर्ड लुकिंग देख के हम चलते हैं, पर फिर भी जो वेब बेस्ड फैक्टर अवेलेबल है जिसका आप ध्यान रखें, अगर आपके स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टॉक में, तो ये पैरामीटर्स में आपको देखना है। 100% कोई भी पैरामीटर में सही नहीं होगा, बट एटलीस्ट 80% से ज्यादा पैरामीटर मैच करने चाहिए, तो आपको ये स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए। अभी इक्विटीज का मतलब क्या होता है, मीन्स कि आज क्या होता है, कोई लोग यहाँ पे रिलायंस ले रहे हैं या महिंद्रा ले रहे हैं या टीसीएस ले रहा है, टाटा स्टील ले रहा है या गोदरेज इंडस्ट्रीज ले रहा है, कोई भी कंपनी, कोटक बैंक ले रहे हैं, तो हम सिर्फ प्राइस से मतलब रखते हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इन्वेस्टर का, क्योंकि क्यों हम मीन्स कि आज हम क्या करते हैं कि रिलायंस मैंने 2100 में लिया, 2500 जाएगा, बट उसका सोच अलग रहता है कि आप जब रिलायंस ले रहे हो तो आप इसके पार्टनर बन रहे हो। जो यहाँ फेसेस आपको दिख रहे हैं, आप उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है, उसकी जो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप 2100 रुपए में मुकेश अंबानी के पार्टनर बन रहे हो। अगर ये प्राइस पे हम देखें तो बेसिकली देखें तो एवरी कंपनी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बिजनेस में आप जा रहे हो ऐसा सोचो, तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रहेगा। आपको प्राइस का रिस्क है वो आपके रिस्क को कम करेगा, क्योंकि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मेरा पैसा मैनेज कर रहा है, जो मेरा कंपनी का मैनेजमेंट है जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और इन्वेस्ट भी तभी भी करना चाहिए जब आपको ट्रस्ट हो, और एक बार ट्रस्ट हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसमें टाइम देना चाहिए। मैं काफी टाइम एग्जांपल देता हूँ कि जब कुछ चीज पकाने के लिए हम ओवन में रखते हैं, तब हम उसका अगर 10 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है तो हमें 10 मिनट देना ही पड़ेगा। हम 1 मिनट में वो निकाल के अगर खा लिए तो ना तो उसका टेस्ट आएगा, ना तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव सर्व होगा, और थोड़ा तबीयत खराब होगा, वो अलग। तो बेसिक देखे तो जहां पे जो टाइम देना पड़ता है वो देना ही पड़ता है। आज कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ब्रेक इवन पे बिजनेस आ पाते हैं। थोड़ा टाइम हम उसको देना पड़ता है, उसके ऊपर हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, तो तब वो बिजनेस है वो ब्रेक इवन के ऊपर आता है। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं सोचते। हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हम सोचते हैं कि मैंने आज कोई XYZ स्टॉक है वो 2000 में लिया, तो आज से उसका प्राइस बढ़ना ही चाहिए, यहाँ से 1 रुपया भी नीचे नहीं आना चाहिए, बट मार्केट ऐसा है नहीं। तो बेसिक देखे तो हमें पता भी है कि स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। जब हम क्लाइंट को बोलते हैं तो वो जानते भी है, पर जैसे बाय करते बाद में वो हमसे बेर नहीं होता। तो ऑलवेज अगर ये फेसेस ध्यान में रखे तो हमें हमारे स्टॉक पे कॉन्फिडेंस आता है, हमारे पोर्टफोलियो पे कॉन्फिडेंस आता है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसमें अर्निंग साइड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अर्निंग पैरामीटर्स देखते हैं, जहां पे हम 5 साल के एंड 10 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के देखते हैं, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादा इस हिसाब से हमने पहले हाईलाइट किया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट्स अ क्लियर इंडिकेशन एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल मींस की कंडीशन। क्योंकि पीएनएल में क्या होता है कि काफी टाइम ड्यू टू दिस मींस की वन टाइम आइटम या चेंज इन इन्वेंट्री, या देखे तो वन टाइम लॉस, वन टाइम गेन, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, इससे क्या होता है कि काफी टाइम कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, बट अगर एक्चुअल कंडीशन में आप देखें बैक जाके तो उसमें आपको इतना क्लियर नहीं दिखता, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट में क्यों आई। तो इससे बेटर है कि कैश फ्लो देखे, तो जो भी कंपनी उसके कैश फ्लो एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, उसका एबिटा देखो, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखो कि कंपनी काफी टाइम क्या होता है कि ड्यू टू हायर सर्टेन कॉस्ट उसका वन टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इससे आप क्या देखो कि प्योरली ऑपरेशनल मार्जिन क्या है, मींस एबिटा इसको बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये देखे आप, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट देखे, डेट भी देखना जरूरी है, बट उसके साथ इंटरेस्ट कॉस्ट देखे। काफी कंपनी का मैंने अंदर मींस कि उसके बैलेंस शीट भी देखे, उसके पीएनएल सेम डेट होने के बावजूद भी इंटरेस्ट कॉस्ट अलग होता है, क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग है वो काफी मैटर करती है कि कंपनी को कितने % पे वो लोन मिले। तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट देखो, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट देखो, साथ में मार्जिन जो मैंने पहले हाईलाइट किए। ये जो पैरामीटर्स है वो आपको करंट के देखने, कोई भी वेबसाइट में आपको ये अवेलेबल होंगे, कंपनी के वेबसाइट में भी ये अवेलेबल रहेंगे।
अभी क्या है, अभी सिर्फ अर्निंग देख के अगर स्टॉक चलता तो ये मार्केट में एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर्स की जरूरत कम होती। उसका दूसरा जो आएगा वो वैल्यू आएगा। वैल्यू में क्या देखना है आपको, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसमें आप सेक्टर के साथ आपके कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखो। प्राइस टू अर्निंग क्या है, फॉर एग्जांपल आज कंपनी का शेयर प्राइस है, उसके डिवाइड बाय ईपीएस करो, मींस के अर्निंग पर शेयर, तो उसको आपको मिलता है वो प्राइस टू अर्निंग। इन सिंपल टर्म्स, जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो लोअर हो, इतना कंपनी के लिए या इतना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेटर है। हालांकि उसके सामने आपको सीधा ही वेनिला नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, सेक्टोरल भी साथ में देखना है। पहले आप कंपनी का देखो पी, उसके बाद आप देखो कि सेक्टर के एवरेज क्या है। काफी कंपनी से, काफी सेक्टर से, लाइक केमिकल ले लो तो केमिकल का एवरेज पी 70 करीब है। तो अगर आप डायरेक्टली देखें कि 70 का पी इट्स मींस ओवर वैल्यूड, तो वो मैटर नहीं करता। सिंपली सिमिलर वे में आप प्राइस टू बुक में देखें तो सारे एफएमसीजी कंपनी का प्राइस टू बुक है वो 15 के ऊपर होगा। तो अगर आप बोले कि मुझे 2-3 प्राइस टू बुक में चाहिए, तो वो शेयर आपको एफएमसीजी में मिलेगा ही नहीं। तो सेक्टर का एवरेज देखो, उसके सामने आपकी कंपनी का एवरेज देखो। अभी जो दो रेशियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक है पी ग्रोथ, मीन्स की पीजी रेशियो इसको बोलते हैं। पीजी ग्रोथ है वो मीन्स कि इसका पीजी ग्रोथ का एक कॉमन उसका वर्ड है, उसमें हम क्या कह सकते हैं उसको, इसको कह सकते हैं कि कंपनी का ओवर वैल्यूएशन का कितना ग्रो हो रहा है, मीन्स कि ऑन एनुअल बेसिस पी रेशियो उसके ईपीएस के कंपेयर में क्या है। एंड अनदर इज द पीएस, मीन्स कि उसके जो शेयर प्राइस है डिवाइड बाय रेवेन्यू पर शेयर। तो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि पीजी एंड पीएस इट्स अ न्यू टर्म। एंड ये रेशियोस कंपैरेटिव टू पी एज वेल एज प्राइस टू बुक, ये रेशियोस है वो वैसे ज्यादा रिलायबल है एंड काफी एक्यूरेट भी है, तो वो देखे। उसके अलावा रिटर्न रेशियोस देखे, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशियोस हम देखते हैं। और आपको भी अगर मींस कि ये भी वेबसाइट्स में अवेलेबल है, काफी रिसर्च वेबसाइट से। असेट पैरामीटर देखे, जिसमें मैं देखता हूँ जो एक अलग रेशियो, इट्स रिजर्व टू मार्केट कैप। ये रेशियो क्या है कि जहां पे आप बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सेफ्टी, मीन्स आज रिलायंस का शेयर ले रहे हैं, एचयूएल ले रहे हैं, तो हमें सेफ्टी वर्ड हमारे दिमाग में इतना नहीं आता। बट जब आप टायर 2 टायर 3 मीन्स के जब आप मिड कैप टू स्मॉल कैप में जाते हो तो आपको रिजर्व देखना ज्यादा जरूरी है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है। और कंपनी की जो भी कंपनी एक्सपांशन सेक्टर में, फॉर एग्जांपल अभी मेटल्स है, केमिकल्स है, इसमें जो भी कंपनी का रिजर्व ज्यादा था वो लोग ने अपना कैपेक्स किया और अपना रेवेन्यू एक्सपांड किया, लाइक यूपीएल उससे 3 गुना बड़ी कंपनी को एक्वायर किया। तो ऐसे ही काफी एक्विजिशंस हुए। तो उसके सामने मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप के सामने रिजर्व 1:2 हो तो वो एक सेफ्टी माना जाएगा। मीन्स कि आज रिजर्व 10 रुपया हो और उसका मार्केट कैप 20 रुपया हो, तब तक ये आपको वहां पे जाना चाहिए। लाइबिलिटीज आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों देखनी है। असेट भी आपको फिक्स एंड करंट असेट क्या है कंपनी की वो देखनी है। ओनर्स इक्विटी, इन्वेंट्री क्या है, साथ में गुडविल क्या है। काफी कंपनीज में गुडविल का फैक्टर है इंटेंजिबल एसेट का, वो वेराई करता है। इस हिसाब से देखे तो आपको बैलेंस शीट बड़ी लगेगी बट उसमें इंटेंजिबल एसेट ज्यादा होगी, तो वो आपको एटलीस्ट उसको हम अवॉइड करते हैं। इसको देखना वैसा नहीं है, बट इसका अगर ये क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो बैलेंस शीट शायद थोड़ी, मीन्स कि उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करना है आपको फिक्स एसेट पे। अभी ये हमने चेक किया, वो किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेक। उसके अलावा आपको कंपनी का चेक करना है, उसमें बिजनेस की कितनी वायबिलिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कितने साल से है, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोस क्या है, उसके कंपटीटर कौन है। लाइक आपको टेलीकॉम सेक्टर का क्लियर एग्जांपल पता है कि इंडिया में अभी भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो ये 2 ही प्लेयर रहे। आइडिया वोडाफोन है बट शायद उसका जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है वो कम हो रहा है, तो आई थिंक 2 ही बड़े प्लेयर्स है। तो कंपटीटर, जो भी बड़ा कंपटीटर अगर आता है रिटेल में भी, जैसे रिलायंस आया, तो पूरा जो छोटे रिटेलर्स थे उसका भी बिजनेस है वो, उसकी वायबिलिटी कम हुई। 11 टेलीकॉम ऑपरेटर थे इंडिया में, जैसे ही रिलायंस जियो ने वहां एंट्री की तो वहां पे अभी 2 ही बचे। तो कंपटीटर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना वो बिजनेस की वायबिलिटी कम है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देखे कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट जा रहा है तो कल उसका कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं आ रहा है, वो काफी आपको देखना है। कहाँ कहाँ उसका मार्केट सेगमेंटेशन है, उसका क्लियर एग्जांपल है मदरसन सुमी, बजाज ऑटो।
पहले ये मदर्स एंड सुमिम बजाज ऑटो में लोग इन्वेस्टमेंट कम करते थे क्योंकि उसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस काफी वाइड था। तो लोग को ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, तो जो भी कंपनीज ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे बेटर है कि डोमेस्टिक स्टोरी को प्ले करे। बट हुआ उल्टा, मीन्स कि जो भी कोविड की सेकंड वेव आई उसके बाद जो भी कंपनीज बेसिस ऑफ यूरोप थे, बेसिस ऑफ यूके, और जिसका जितना ज्यादा जियोग्राफिकल एक्सपेंशन था, प्रेजेंस था, वो कंपनी ने काफी अच्छा अर्निंग वाइज किया। तो ये आपको देखना है अकॉर्डिंग टू टाइम, लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, साथ में सप्लाई चेन की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल इंडिया में जब कोविड आया तब इंडिया की इतनी बड़ी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी, बट एपीआई चाइना से आता है। तो जैसे एपीआई रुका, यहाँ पे कंपनीज में क्वेश्चन मार्क लग गए। जैसे सेमीकंडक्टर का इश्यू है, इंडिया इज ऑटो हब ऑफ द वर्ल्ड, बट वहां पे जैसे अभी सेमीकंडक्टर का इश्यू हुआ तो 20 दिन 22 दिन का स्टॉक है मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो सप्लाई चेन है उसका कितना वाइबिलिटी है। चैनल चेक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टाइम आपको रियलिटी मार्केट से पता चलती है, तो चैनल चेक करना है। स्टेक होल्डर, उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का कंपनी के प्रति क्या बिहेवियर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज्यादा देखता हूँ, उसमें भी प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, साथ में प्रमोटर ने प्लेज कितने किए शेयर, वो प्लेज क्यों किए है, साथ में एफआईएस डीआईएस उसका कितना वेटेज है, रिटेल इन्वेस्टर कितना है। रिटेल इन्वेस्टर जितने ज्यादा होता है उतना ही स्टॉक्स थोड़ा वोलेटाइल होता है, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा होता है तब उसमें क्या होता है कि कोई भी इवेंट का और रिएक्शन, जो हमने आगे भी हमारा टॉपिक का भी आज का टॉपिक भी है, और रिएक्शन वो ज्यादा हो जाता है। तो जितना इंस्टीट्यूशन के पास होता है स्टेक उतना उसके लिए ये सिचुएशन में पॉजिटिव है। वही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं उसमें उतना कितना वेटेज है। और आपको लास्ट 8 क्वार्टर में ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें क्या चेंज आया वो देखना है। ये जो सारे फैक्टर्स है हम स्टॉक सिलेक्शन के टाइम देखते हैं, उसके अलावा आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका आज फॉर एग्जांपल FY21 में हम तो 22 और 23 एंड 24 तब तक हम देखते हैं कि तब तक के उसके अर्निंग के प्रोजेक्शंस क्या है, प्रेडिक्शंस क्या है। तो हम ये सारा टेक्नोलॉजी से पूरा करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये तो हमने देख लिया कि क्या देखना है, पर फिर भी काफी इतना देखने के बाद भी रिटर्न आना वो अभी भी गारंटी नहीं है। पहले हमने वो ओवर प्राइस ओवर वैल्यूएशन देखा, बाद में मार्केट का वैल्यूएशन देखा, बाद में क्या देखना है वो देखा। फिर भी एक ऐसा फैक्टर है कि जो मार्केट में पोर्टफोलियो का आपका कितना भी अच्छा स्टॉक हो पोर्टफोलियो में, काफी टाइम क्या होता है कि ड्यू टू दिस क्वेश्चन कि हाउ टू बिल्ड यूनिक पोर्टफोलियो, तो ये यूनिक पोर्टफोलियो ना होने की वजह से अच्छे स्टॉक में भी पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आता। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि कोई कंपनी ना चली हो उसका हमारे पोर्टफोलियो में 30-40% वेटेज होता है। कोई कंपनी चल गई है, यहाँ से 3 गुना हो गए, बट हमारे पोर्टफोलियो में 2% ही वेटेज है। तो ऐसे पोर्टफोलियोस में जब रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तब वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें अलोकेशन ठीक नहीं होता है, इसमें क्लासिफिकेशन ठीक नहीं होता है। तो बेसिक उसको भी हम देख लेंगे कि हम क्या करते हैं। बट उसके पहले जब हमारी फंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी जो हमने हाईलाइट की, तो उसमें हम ज्यादा जो मैक्रोस देखते हैं, माइक्रो जो हमने आगे देख लिया कंपनी के बारे में, जो दोनों स्लाइड में हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी एनालिसिस, वो आता है माइक्रो में। तो पूरा माइक्रो वहां पे देखते हैं। मैक्रो इंडियन इन्वेस्टर के लिए इंडिया में इंपॉर्टेंट कम है, क्यों कम है क्योंकि आज एफआई है, उसको उसके पास ताइवान ऑप्शन है, चाइना है, इंडिया है, कोरिया है, सब ऑप्शन है। तो उसको कंट्री के मैक्रो देख के वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कंट्री में जाना। बट इंडियन इन्वेस्टर के पास इंडिया ऑप्शन है, तो इसमें मैक्रो कम यूज करते हैं। मेसो है, मेसो एनालिसिस हम काफी अच्छी तरह करते हैं। मेसो एनालिसिस क्या करता है, वो कुछ चेंज है उसको इंडिकेट करता है, मींस चेंज इन कंपटीशन, चेंज इन सप्लायर्स, क्लाइंट्स, ट्रांजिशनल जो एनवायरनमेंट है वो ये हमें इंडिकेट करता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो ना तो मैक्रो में आता है ना तो माइक्रो में आता है, वो हम क्लियरली आता है मेसो में। हम एक एग्जांपल ले कि बिफोर कोविड फार्मास्यूटिकल देखे तो अपने 8 साल के एक करेक्टिव वैल्यूएशंस में थी। फार्मा कंपनी के प्राइस मींस के चले ही नहीं थे लास्ट 8 साल से। सिमिलर वे में केमिकल कंपनीज भी नहीं चली थी। बट यस, जैसे कोविड का सिनारियो आया पूरा थीम चेंज कर दिया। ऐसा नहीं था कि ये सबको 24 को ही पता चला, 24 ऑफ मार्च।
तो उसके पहले भी पता था कि ड्यू टू दिस कोविड इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसमें तब आपको अपना एलोकेशन वहां पे बढ़ाना है, वो इंडिकेशन मेसो करता है। काफी टाइम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटर लाइक सेबी, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटर लाइक WTO, साथ में देखे तो UN, कोई भी बड़े रेगुलेटर है वो कुछ चेंज करते हैं। लाइक अभी है तो अभी एनवायरनमेंट का पूरा चेंज है, लोग का क्लीन एनर्जी के ऊपर काफी फोकस है। जब से यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट फिर से रिस्टोर कर दिया, तब से वर्ल्ड में पूरा एक ही थीम चल रहा है, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। तो उसमें ट्रांजिशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टेप लेना है। आपको आपके पोर्टफोलियो में आपका क्या पोर्टफोलियो अभी जो नई थीम आनी है उसके साथ बैलेंस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल कोविड के पहले फाइनेंशियल्स में काफी बड़ा करेक्शन था और बाद में सबसे लास्ट में फाइनेंशियल्स रिकवर हुए जब एफआईएस का इन्फ्लो आया। तो बेसिक आपको वही देखना है कि आपकी चेंजेस है वो रेगुलेटर से हो, सप्लायर क्लाइंटल चेंजेस, लाइक जो भी अभी एनवायरनमेंट के इश्यूज है, चाइना ने अपनी केमिकल एंड मेटल कैपेसिटी काफी कम कर दी, तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वर्ल्ड में हमें मिला। तो ये आपको देखना है। तो मेसो एनालिसिस आपको दिखाता है कि क्या बाय करना है, माइक्रो एनालिसिस आपको दिखाता है कि वो क्या में क्या बाय करना है, मीन्स की कौन सा सेक्टर बाय करना है वो आपको मेसो से मिलेगा, कौन सा स्टॉक सेक्टर में से बाय करना है वो आपको माइक्रो दिखाएगा, मैक्रो आपको दिखाएगा कि कंट्री की इकोनॉमी क्या है और उसके सामने आपका पोजीशन, आपका कितना अलोकेशन मार्केट में होना चाहिए। ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं इतना इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बात किया कि मैक्रो करते हैं, उसके साथ सेक्टरल करते हैं, चैनल चेक करते हैं, तो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद हम मार्केट के आउटलुक के हिसाब से उसमें अलोकेट करते हैं कि आज सेक्टर में कितना वेटेज होना चाहिए, बेंचमार्क में सेक्टर का कितना वेटेज है। आज फॉर एग्जांपल मेरा बेंचमार्क निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में फाइनेंशियल का कितना वेटेज है, उसके साथ हमारे सेक्टर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कितना वेटेज है। सेक्टर में भी अगर मैंने 2 सिलेक्ट किए स्टॉक, तो दोनों में से कितना कितना वेटेज स्टॉक को मुझे देना है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड अलोकेशन रेशियो बनता है एंड उसके बाद हम करते हैं अलोकेशन ऑफ फंड। ये अलोकेशन होने के बाद लास्ट में हमारा आता है वो हम रेगुलेटर, आपको भी आता होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, उसमें हम रेगुलेट रीबैलेंस भी करते हैं अगर जरूरत हुई, एंड लास्ट में रिपोर्टिंग, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है वो रिपोर्ट करते हैं। हम 3 टाइप के हमारे स्टॉक्स कंपोजिट करते हैं। इसमें पहले होता है आउट परफॉर्मर, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट से अच्छा ज्यादा रिटर्न देना। दूसरा है मार्केट परफॉर्मर, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट के साथ रिटर्न देना। और तीसरा है प्रोटेक्टर, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जब मार्केट रिवर्स जाए, मार्केट में जब पेंडेमिक जैसा सिचुएशन हो, तो वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करे। मैं काफी टाइम, अगर आपने सुना हो तो सॉरी, बट मैं काफी टाइम बोलता हूँ कि ये आउट परफॉर्मर है, इट्स लाइक वीरेंद्र सहवाग, जिसका ऑब्जेक्टिव है 50 विकेट का ध्यान ना रखे, 50 बॉल में 100 रन बनाए। मार्केट परफॉर्मर इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर 100 में 100, एंड प्रोटेक्टर आर लाइक राहुल द्रविड़, जो आपका विकेट बचा के रखे। तो जब जब मार्केट की अलग अलग कंडीशन आएगी, आपको दौड़ के वो कंडीशन में आपको भागना नहीं पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो सही वेटेज में सही एलोकेटेड है, तो आपके जो स्टॉक है उसका कंपोजिट ही ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पोर्टफोलियो को कोई भी टाइम पे बीट कर सके, मार्केट को बीट कर सके, इंडाइसिस को बीट कर सके। तो वैसे ही एक स्टॉक का भी एग्जांपल है आउट परफॉर्मर लाइक दीपक एंटियर, हमने बाय किया, उससे 4th टाइम चल गया। मार्केट परफॉर्मर्स लाइक HDFC बैंक जो निफ्टी के साथ चल रहा है, ITC लाइक पेंडेमिक में आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऐसे सेक्टर्स है जो हमें अभी लग रहा है कि पॉजिटिव रहने चाहिए, जिसमें IT टेक्नोलॉजी, सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स, FMCG स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फार्मा, टेलीकॉम में 2 ही प्लेयर है, भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस, जो रिलायंस आपको डाइवर्सिफाइड में भी मिल जाएगा, एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। ये जो सारे सेक्टर्स है हम आपको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि टाइम मैंने थोड़ा ले लिया है, मेरा जो टाइम अलोकेट हुआ था उससे 5-10 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, तो मैं अभी हैंड ओवर करूंगा अंकुश जी को। सो थैंक यू टू ऑल फॉर हियरिंग मी फॉर 45 मिनट्स, एंड आई थिंक कि बेसिक हम काफी ऐसे इवेंट करते रहेंगे। ये स्पेसिफिक टॉपिक पे था, ये पूरा हम क्या कर रहे हैं उसका हम बताने जाएंगे तो हम सुबह तक हमें बैठ